Hello students, I am Pratibha, your moral science teacher. Today we are going to learn chapter 2 of your book, God Wants Us to Be Happy. You know dear students, we all are God children. And what God wants, He wants all His children lived happily. You know student, what is real happiness? Okay, let's read this chapter together to understand the real meaning of happiness. You know, when there was an old woman who was searching for her spectacles. एक बार एक old lady अपने spectacles को ढूंढ रही थी. She usually kept her spectacles on the table beside her bed. Like us, what we do if we lost something? We searched everywhere, right? She did the same. She removed all the things from the table. उन्होंने टेबल से सारी चीज़ें हटा दी. She looked on the bed. She looked under the bed. उन्होंने बेड के ऊपर और बेड के नीचे देखा. But the spectacles were nowhere to be found. पर spectacles उन्हें कहीं पर भी नहीं मिले. All of sudden, happened to see herself in the mirror, and you know, her spectacles were on her head. She wasted a lot of her time looking for her spectacles which she herself was wearing. Like the old lady, the whole world is searching happiness. But you know, dear students, we can find happiness within ourselves. We need not to search it anywhere. It exists within us. Dear students, ओल्ड लेडी के स्पेक्टिकल्स कहाँ थे? उसके हेड पर थे ना, पर वो सारी जगह को सर्च कर रही थी. फर्स्ट शी हैज़ टू चेक हर सेल्फ ओनली. लाइक we all search happiness here and there, but the real happiness exists within us only, not in any place, not in anything. Man is born to be happy. God wants everybody on earth to be happy. We kept on hunting for happiness in the wrong things. You know students, what is the difference between animal and a man? Animal और man में क्या difference होता है? You know dear students, animal became happy when he eats food. Animal को खुशी मिलती है जब वो खाना खाता है. When his stomach is full. अगर हम किसी एनिमल को फूड दे देंगे तो वो हैप्पी हो जाएगा. बट मैन इज़ नॉट एनिमल, राइट स्टूडेंट्स? द हैप्पीनेस ऑफ मैन लाइज इन हिज माइंड. इट डज नॉट कम फ्रॉम हिज बॉडीली नीड्स. बॉडीली प्लेजर्स आर ओनली फॉर शॉर्ट टाइम. मैन की हैप्पीनेस उसके माइंड से रिलेट करती है. हमें और एनिमल में डिफरेंस होता है. हम हमारी हैप्पीनेस को किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते. कोई चीज़ हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस दे सकती है, पर वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स व्हेन डैडी ब्रिंग्स अप न्यू प्रेजेंट फॉर यू? अगर आपके डैडी आपके लिए एक न्यू प्रेजेंट लेकर आएंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा ना. आप उसे हर जगह लेके जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे उसे साथ में लेकर जाएंगे. बट ये हैप्पीनेस कब तक एग्जिस्ट करेगी? 2 डेज़ तक, 3 डेज़ तक, फ्यू वीक्स तक, फ्यू मंथ्स तक. उसके बाद क्या होगा? यू गेट बोर्ड ऑफ इट और आपकी हैप्पीनेस ख़त्म हो जाए. एंड देन व्हाट यू डू? You want some other thing to give you happiness. You trouble your parents for some new thing you have seen on the television, and that is very wrong dear students. हमें कभी भी हमारे पेरेंट्स को ट्रबल नहीं करना चाहिए. Material things do not give us lasting happiness. कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा देर तक खुशी नहीं दे सकती. We get tired of these things. What happened when you help somebody in your class, students? You have made a few friends, right? If you help somebody in your class, then क्या होगा? आपके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे. And then you feel happy. You definitely feel happy by making new friends, right students? And what happened? Instead of wasting food, you give this food to somebody who really need that food. You know, हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो गॉड का गिफ्ट है. हमें उसे नीडी और पुअर पीपल को देना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स अस रियल हैप्पीनेस. अगर हम फूड पुअर को देंगे तो वो हैप्पी होगा और उसकी हैप्पीनेस से हमें भी हैप्पीनेस मिलेगी. एंड वो हैप्पीनेस कभी भी ख़त्म नहीं होगी. हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ अ माइजर स्टूडेंट? You know,
There was a miser who was always sad because he had less money than his neighbor. वो क्यों दुखी रहता था? क्योंकि उसके पास कम पैसे थे कंपैरिजन टू उसके नेबर के. One day his wife asked him the reason for his unhappiness. एक दिन उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि आप इतने अनहैप्पी क्यों रहते हो? The miser said, you know what miser said? He said that his neighbor has 5 servants but he had only 3. They had 6 cars but he had only 4. Their house is bigger than his house. His wife was shocked. जब उसकी वाइफ ने ये सब सुना कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली उसके नेबर के, तो उसे बहुत शॉक लगा. और उसकी वाइफ ने उसे बोला, हैव यू सीन द फैमिली लिविंग ऑन द रोड साइड? दे डू नॉट हैव अ हाउस टू लिव इन. उनके पास तो क्या होता है, जो रोड साइड पर रहते हैं उनके पास प्रॉपर हाउस भी नहीं होता. दे हैव टू वर्क हार्ड इवन इफ़ दे आर सिक. उनके लिए कोई हॉलीडेज़ नहीं होती है, उनके पास ना कोई प्रॉपर हाउस होता है, उन्हें हमेशा वर्क करना पड़ता है. हियरिंग दिस द माइजर गॉट वेरी एंग्री एंड सेड, हाउ कैन यू कंपेयर मी विद द फैमिली लिविंग ऑन द रोड साइड? कि तुम मुझे उनसे कैसे कंपेयर कर सकती हो जो रोड साइड पर रह रहे हैं. तब उसकी वाइफ ने उसे बोला, दे आर ऑल्सो गॉड चिल्ड्रन. वो भी तो क्या है, भगवान के चिल्ड्रन है ना. We should be thankful that God has given us a big house. हमें गॉड को थैंक यू करना चाहिए कि उसने हमें बिग हाउस दिया, सर्वेंट्स दिए एंड कार दी. Why look at somebody who has more? Look at people who do not have as much as we have. हम अपने से बड़ों को क्यों देखें, हमें अपने से छोटों को भी तो देखना चाहिए. हमें गॉड से कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें दुखी होना चाहिए. हमें तो गॉड को थैंक करना चाहिए कि उसने हमें जो भी दिया वो बहुत अच्छा दिया. His wife made him understand that he should thank God. जो भी उसे गॉड ने दिया है उसके लिए उसे थैंकफुल होना चाहिए और उसे हैप्पी रहना चाहिए, एंड यही उसे ट्रू हैप्पीनेस देगा. यू नो स्टूडेंट्स, हमें कभी भी गॉड को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए. गॉड ने हमें हर चीज़ दी है, हमें उसे थैंक करना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम हैप्पी रहेंगे देन गॉड ऑल्सो फील हैप्पी. सो स्टूडेंट्स, ट्रू हैप्पीनेस हमें कब मिलती है? जब हम गुड डीड्स करते हैं, लोगों के साथ अच्छा करते हैं, एंड जो भी हमारे पास है उसके लिए गॉड को थैंक करते हैं, एंड किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करते. देन वी फाइंड ट्रू हैप्पीनेस. लेट्स रीड वर्ड्स ऑफ विजडम टुगेदर. अ स्माइलिंग फेस is as pleasing to look at as a beautiful flower. The best way to make God happy is to keep smiling. एक स्माइलिंग फेस एक ब्यूटीफुल फ्लावर जितना प्लीजिंग होता है, एंड सबसे बेस्ट तरीका क्या है गॉड को हैप्पी करने का? हम अगर स्माइल करेंगे, हम अगर खुश रहेंगे, देन वी मेक गॉड हैप्पी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, the chapter get over. I hope you all understand the chapter very well. Thank you and have a nice day.